All right, we'll start this bulletin with some more updates coming in the Kanpur probe. Viewers, sensational details are emerging in the UP police probe into the chase of gangster Vikas Dubey. Our political editor Aishwarya also getting us more breaking news, but sources have now told Republic that UP cop under arrest of the STF is the one who arranged a vehicle for the gangster to escape. What is even more sensational is that sources have suggested that Vikas Dubey is extremely injured and could probably have ruptured both of his legs. Now, a hunt is on for Vikas Dubey, and it has spread across multiple states, including Bihar, which shares a border with Nepal, one of the suspected locations for the gangster to have fled to. We are also getting in some more breaking updates of the LDA officials are right now at Dubey's Lucknow residence, and these are the visuals on your screen right now of the LDA officials that are in fact as the investigation proceeds further at Vikas Dubey's Lucknow residence. Let's go across to my colleague Gaurav, who's also joining us over the phone line from Kanpur. So Gaurav says several sensational aspects emerging from the investigation so far. The latest being that the LDA officials are right now at Dubey's Lucknow residence. Please take us through more details on this. बिल्कुल आपको बता दें जिस तरह से जो लखनऊ एलडीए है All right, we'll try to go back to my colleague Gaurav shortly, but viewers, sensational details and more angles are emerging from the UP police probe into the chase of the gangster Vikas Dubey, who's still on a run. In fact, there has been a manhunt that has been launched in multiple states, including Bihar, which shares a border with Nepal, one of the suspected location of the gangster as well. And even as we speak right now, the visuals on the screen are from the Lucknow residence of Vikas Dubey. The LDA officials are at this point right now searching, and further investigation probe is being conducted not just at this particular location but at multiple locations where the police is suspecting there might be more links emerging to Vikas Dubey as well. In fact, we do know that there have been more sources that have suggested that Vikas Dubey might be in an extremely injured condition as we speak right now and could have probably have ruptured both of his legs as well. All right, we do know that there has been a manhunt that has been launched for Vikas Dubey, who is the main accused in the case. He has over 60 cases that have already been lodged against him in multiple cases against him, criminal cases. Let's go across to my colleague Gaurav joining us live from Kanpur. So Gaurav, several sensational aspects coming out of the entire investigation. We do know that there is a manhunt launched. The latest update coming in is that his Lucknow residence is where the LDA officials are right now. कुछ अहम पॉइंट इसके जो कानपुर स्थित बिकरू गांव में जिसका घर था, वहां भी पूरे गांव में आज एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद गांव के हर एक घर को पूरी तरह से चेक किया गया था। वहीं बता देगा तो इसका जो किला था उससे आज फिर कुछ जो बम थे देसी वो बरामद हुए वहां से। लगातार आपको बता दें इन्वेस्टिगेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसके घर से लगातार कहीं अफवाहों का मिलना और अफवाहों का मिलना की बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था विकास दुबे, जिसके चलते जो इसने इतना बैकअप लेके रखा था अपने घर पे, इतनी भारी मात्रा में बारूद मिला इसके घर से और जो बम्स मिले, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये तैयारियां कर रहा था। और उसकी बात की बात करें, एक मैसिव सर्च जो इसके लिए चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी इसको लेकर के चल रहा है। जिस तरह से अब तक पुलिस के हाथ विकास दुबे नहीं लगाए, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को बोला है कि जो मैसिव एक सर्च ऑपरेशन चलाया है इसके चलते ये बच के नहीं जाए, लेकिन एक लगातार जो पुलिस के हाथ अभी तक विकास दुबे नहीं लगाए। कहीं ना कहीं बात की जाए तो उससे जुड़े कई लोग जो हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में, उनसे बराबर जो जांच है वो चल रही है। जैसे एक अहम पॉइंट जय वाजपेयी का आया था, जो कि इसका एक पूरी तरह से जो फाइनेंशियल था वो इसका सब देखता था, जिसका ब्लैक मनी था उसको व्हाइट करता था, तो उसको भी पुलिस ने कल सुबह यूपीएससीएफ ने उठाया था, उससे बराबर पूछताछ चल रही है और उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो
हम ये कह सकते हैं कि पुलिस काफी करीब है, लेकिन अब तक विकास दुबे के पास करीब पहुंचने में पुलिस असफल है कहीं ना कहीं। जी, इनफैक्ट गौरव हमारे साथ बने रहिए। वी लिसन टू माय कॉलीग प्रकाश हु स्पोक टू द डीजीपी ऑफ बिहार ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ मैन हंट एंड इन्वेस्टिगेशन इज करंटली अंडर वे टू फाइंड द गैंगस्टर। Vikas Dubey has been absconding for quite some time now, and it is expected that he might flee from the Indo-Nepal border, which is a porous border, and it transcends to Bihar, UP, Uttarakhand, the Himalayan range. And Bihar shares around 760 kilometers of porous border, and Nepal has always been a safe haven for these type of criminals or gangsters, like we have seen in the past, whether it is Daud Ibrahim, Ejaz Lakdawala was arrested very recently in January, then Amit Kumar, the kidney kingpin, Yasin Vatkal in the past. I am joined by DGP of Bihar because he, I believe, he had a talk with the STF chief of UP regarding Vikas Dubey. Sir, ये बताइए कि विकास दुबे का मैनहंट चालू है, आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर बिहार में काफी पोरस बॉर्डर है। तो क्या बिहार में आ जाएगा? बिहार में आ जाएगा, और बिहार में आ जाएगा और सुरक्षित यहाँ से चला जाएगा, और बिहार पुलिस देखती रह जाएगी। 8 पुलिस वालों को मार करके आया है, तो बिहार पुलिस यूपी पुलिस अलग पुलिस है। और मैंने देखा एक अधिवक्ता ने उस पर कमेंट किया था, अपने फेसबुक पर लिखा था, ब्राह्मणों का शेर है, शर्म आनी चाहिए। मुझे घृण आती है कि पेशेवर अपराधियों को अपने जात का हीरो बनाते हो। हर जात के लोग अपने अपने जात के पेशेवर अपराधियों को अपना हीरो बनाने लगे तो समाज कहाँ जाएगा? फिर तो किसी दिन वो लाल किला पर कोई अपराधी जाकर के तिरंगा फहराएगा। तो ये शेर है। तो फिर वो हमारे 8 आदमी जो मारे गए, डीएसपी से लेकर के सिपाही तक, दरोगा तक, वो चूहे थे। ये शेर है। उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, वो कानून का पालन करने गए थे, और बिहार में घुस जाएगा और यहां से सही सलामत चला जाएगा। नेपाल बॉर्डर पे आपने क्या कार्रवाई की है, कैसे? सारे लोगों को बोला गया है, सबको अलर्ट किया गया है, सारे बिहार की पुलिस को जो बॉर्डर पर हैं, सारे हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट को, एसटीएफ को अलर्ट किया गया है। एक एक चीज पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। जिस दिन बिहार के अंदर घुसने की हिम्मत करेगा, उस दिन उसको पता चलेगा कि बिहार पुलिस क्या है और बिहार की एसटीएफ क्या है। लेकिन ये तो पोरस बॉर्डर है सर, तो पोरस बॉर्डर के तहत तो बहुत बार पहले भी, जैसे यासीन भटकल, दाऊद इब्राहिम, एजाज लकड़ावाला को आप लोग ने गिरफ्तार किया, बिहार पुलिस की अहम भूमिका थी यासीन भटकल को भी। लेकिन नेपाल एक सेफ हेवन है वहां पर, और अभी जो रिश्ते हैं नेपाल से, काफी दिक्कतें आ सकती है अगर वो नेपाल में छुपा हुआ हो वहां से लाने में। देखिए, आप नेपाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, नेपाल की नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसे आम आदमी की तरह, आम आदमी जाता रहता है, फॉरेस्ट बॉर्डर है। लेकिन जब इस तरह का कोई अपराधी बिहार में या बिहार से कहीं भी बाहर जाता है नेपाल में, तो बिहार में घुसता है, तो उसके लिंक होते हैं, उसके कनेक्शंस होते हैं। तो वो हम जितने भी पॉसिबल उसके लिंक्स और कनेक्शंस होते हैं, सबको वॉच पर रखे हुए हैं। वो घुसने की कोशिश करेगा, हमें पता चल जाए। We'll also go across to my colleague Vivek joining us more on this entire issue. In fact, Vivek, we do know that we just heard the Bihar DGP also stating that they will make sure that if Vikas Dubey does enter the state, he will not go back alive. He has also, we do know that several bombs have been recovered during the search operations by the police authorities during in the Bikaru village as well. And also police forces continue their search operations in the entire village. What more are you picking up? देखिए, कानपुर पुलिस लगातार जो अपना सर्च ऑपरेशन है वो लगातार शुरू है उसका, और कानपुर पुलिस अभी जो उसका बीकरू गांव था जहां का विकास दुबे रहने वाला था, वहां पर गई थी, और बीकरू गांव में उसने सर्च ऑपरेशन किया है। और उस गांव में एक घर से कुछ बॉम्ब्स पुलिस को मिले हैं, और साथ ही साथ कुछ और अन्य हथियार भी पुलिस को बीकरू गाँव से मिले हैं। ये तकरीबन आधे घंटे पहले पुलिस बीकरू गाँव पहुँची है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। उसमें ये जो अलग अलग, जैसा कि हमने पहले दिन देखा था कि जब उसका घर जब गिराया जा रहा था, तब इस बात को लेकर के बात कही गई थी कि उसके पास, उसके घर में हथियारबंद चीज़ें थी और बॉम्ब्स रखे हुए थे, तथा उसके गांव में भी उसने अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें छुपाई हुई थी। तो कहीं उसी बीच में उसी सब इनपुट्स को लेकर के सर्च ऑपरेशन आज किया गया है, और बताया जा रहा है कि कुछ बॉम्ब्स वहाँ से पुलिस को रिकवर हुए हैं, कुछ बॉम्ब्स वहाँ से पुलिस को मिले हैं। साथ ही साथ जो एक अन्य मामले में, इस पूरे मामले में लेकर के जो एक
कानपुर जो उस वक्त के जो तत्कालीन एसएसपी रहे आनंददेव, उनको लेकर के एक वायरल ऑडियो की जांच की बात कही जा रही थी। तो उसको लेकर के पहले एडीजी जोन कानपुर को उसकी जांच दी गई थी, लेकिन अब उसकी जांच बदल दी गई है और अब आईजी रेंज लखनऊ जो है लक्ष्मी सिंह, अब वो उसकी जांच कर रही हैं और वो इस वक्त कानपुर पहुंच चुकी हैं। कानपुर का जो सीओ ऑफिस बिल्हौर का है वहाँ पर वो हैं और वहाँ पर वहाँ जिस ऑफिस से वो लेटर टाइप हुआ था, सीओ बिल्हौर ने जिस लेटर में वो सारी चीज़ें लिखी थी कि ये पूरा मामला विनय तिवारी का जो केस है वो काफ़ी कुछ क्रूशियल हो सकता है, आने वाले समय में ये दिक्कत कर सकता है। विकास दुबे को लगातार ये सह दे रहा है और आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन के लिए, समाज के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो वो जिस कंप्यूटर से वो लेटर लिखा गया था, वो कंप्यूटर को सील कर लिया गया है। उस कंप्यूटर से और जानकारियाँ इकट्ठा करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे के मामले को हुए 100 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन लगातार पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार चालू हैं। लेकिन अभी भी जो पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग पाया है। इन सब के बीच में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई ये करी है कि 15 वांछित आरोपियों के जो पोस्टर्स हैं वो निकाल दिए हैं और वो उत्तर प्रदेश के सभी थानों के साथ ही साथ अगल बगल के जो प्रदेश हैं वहाँ पे भी उनको भेजा जा रहा है और उनको सभी अगल बगल के जो प्रदेशों की जो पुलिस है उनको एक्टिव किया गया है। चाहे वो यूपी, चाहे वो बिहार की पुलिस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, सभी को एक्टिव किया गया है। साथ ही साथ जो नेपाल का जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्टिव किया गया और उन तक भी उनके भी जो जगह हैं वहाँ पर ये फ़ोटोज़ को दिया जा रहा है, जिससे कि वो अगर इस तरीके के कोई भी अपराधी अगर वहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो 21 वांछित आरोपी इस पूरे मामले में लेकर के बनाए गए थे, लेकिन अभी 18 ऐसे वांछित आरोपी हैं जो अभी भी फरार हैं और इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस को कुछ खास कड़ी हालांकि सामने नहीं लग पाई है। लेकिन जो एक अहम कड़ी थी, जो पुलिस की एक तरीके से पुलिस के अंदर की गद्दारी की कड़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं काम हो रहा है। 4 अलग-अलग an emergence of a bigger nexus between the gangster as well as the cops that is being investigated into. We'll keep coming back to you for more on this. Many thanks, Vivek, for getting us that update.